وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ رب کریم نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا اور اس میں روزے اور تراویح اور نماز پڑھنے کی سعادت نصیب کی. رب کریم نے آج ہمیں عید کا دن عطا فرمایا اور اس ماہ مبارک کو شوال المکرم کہا جاتا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اسے تفسیر الدر منصور میں نقل کیا، فرمایا کہ شوال کے معنی یہ دم کا اٹھانا، جیسے جانور اپنی دم اٹھاتا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے تو اس ماہ مقدس میں اللہ کی عبادت کرے اور خاص عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرے تو فرمایا کہ جس طرح جانور تیزی سے دم اٹھا کر نیچے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی جلدی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا. فرمایا کہ یہ دن عید کا دن یوم الرحمہ ہے. اس دن اللہ کی رحمتیں اس کے بندوں پر برستی ہیں. یہ دن برکت کا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو برکتوں سے نوازتا. یہ دن جو ہے وہ بلندیوں کا دن ہے. اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کو بلندیاں عطا فرما. یہ دن مغفرت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. اور فرمایا آپ دیکھیے کہ ہر مذہب کے اندر تہوار ہے، ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی عید ہے. عید کا معنی خوشی کا دن، مسرت کا دن، فرحت کا دن، راحت کا دن، کسی نہ کسی اچھی چیز کا دن. تو فرمایا کہ ہر مذہب کے اندر آپ دیکھیے کوئی جو ہے اپنی مذہبی تہوار کا آغاز جو ہے یہ ڈھول بجا کر کرتا ہے. کوئی اپنے مذہبی تہوار کا آغاز جو ہے ہلا گلا کر کے کرتا ہے. کوئی جو ہے اپنے مذہبی تہوار کا آغاز جو ہے یہ پٹاخے چلا کر کرتا ہے. کوئی اپنے مذہبی تہوار کا آغاز جو ہے یہ ہولی کے ذریعے آپ دیکھیے رنگ اڑا کر کرتا ہے. لیکن مسلمان کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ اس خوشی کا دن جو ہے اللہ کے آگے سجدہ کر کے کرتا ہے. نماز کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اس کی محبت میں اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، اللہ کے کرم سے تیل لگا کر، غسل کر کے پاک اور صاف ہو کے مولا کی بارگاہ میں ادب سے کھڑا ہو کر اس دن کا آغاز کرتا ہے. اور پھر فرمایا گیا کہ تم ان سے کہہ دو اے فرشتوں یہ گلیوں میں گھوم جاؤ، آج گلیوں کے سرہانے کھڑے ہو جاؤ، آج جو ہے شہر شہر بکھر جاؤ، آج جو ہے گاؤں گاؤں بکھر جاؤ، اور جتنے میرے بندے اس نماز عید کے اجتماع میں میری محبت میں آئے ہیں انہیں خوش خبری سنا دو کہ رب تعالیٰ نے تم سب کی بخشش و مغفرت فرمائی. عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں کہ ماہ مقدس ہم سے رخصت ہوا. کتنا عظیم مہینہ تھا، کتنا شان والا مہینہ تھا. کبھی آپ سوچئے تو صحیح اتنی جلدی ہم سے رخصت ہو گیا، اچانک ہم سے رخصت ہو گیا. یہ ماہ مقدس نے ہمیں کیا دیا؟ ہم نے پورا مہینہ روزہ رکھا، وہ ہمیں صحت دے کر چلا گیا. اس مہینے میں ہمیں جتنا رزق ملا شاید ہی کسی مہینے میں ملتا ہے. اس مہینے میں ہم نے جتنی نعمتیں آئی شاید ہی اسی مہینے میں ہم کھاتے ہوں گے. اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جتنا رزق دیا شاید ہی اسی مہینے میں بندوں کو عطا ہوتا ہوگا. ارے کیسا وہ وقت تھا کہ نفل پڑھو تو فرضوں کے برابر ثواب، فرض پڑھو تو 70 فرضوں کے برابر ثواب. یہ مہینہ جو ہے ہمیں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر دے کے گیا.
फर्जों का सवाब 70 फर्जों के बराबर दे के गया। एक मर्तबा हम सुभान अल्लाह कहते थे तो हजारों मर्तबा सुभान अल्लाह कहने का अजर हमें वो दे के चला गया। एक मर्तबा हम तिलावत करते थे तो हजारों मर्तबा तिलावत करने का अजर वो हमें देकर गया। लेकिन हाँ पर हम सोचे कि हमने इस माह मुक़द्दस को क्या दिया, हमने माह रमजान के लिए क्या किया। हमने तो जो है इसमें खातिर खा इबादत भी नहीं की, हमने तो इस माह मुक़द्दस की कदर भी नहीं की। अब तो वैसे ही दिन गुजारते थे जैसे आम दिन गुजार रहे हैं, अब तो ऐसे ही रातें गुजारते थे जैसे आम रातें गुजार रहे हैं। आप देखिए गलियों में लोग जो है ताश की गड्डियां लेकर माह रमजान उन्होंने गुजार दिया, मोबाइल पर गेम खेलकर लोगों ने माह रमजान गुजार दिया, टीवी पर फिल्म देखकर लोगों ने माह मुबारक को गुजार दिया। रोजा न रखकर गलियों में घूमते हुए पिचकारियां मारते हुए उन्होंने माह मुक़द्दस को गुजार दिया। आज ये माह मुक़द्दस हमसे चला गया और रब्बे करीम जब इससे पूछेगा, ऐ माह रमजान तूने मेरे बंदों को कैसा पाया, तो जरा सोचिए कि अगर माह रमजान ने हमारी शिकायत कर दी तो बताइए हमारा क्या होगा। माह रमजान ने नाराजगी का इज़हार कर दिया तो हमारा क्या होगा। कहते हैं कि आज मजदूरी का दिन है कि जिन्होंने माह रमजान में रोजे रखे, जिन्होंने माह रमजान में तरावियां पढ़ी, जिन्होंने माह रमजान में बाजमात नमाजें पढ़ी, जो माह रमजान में गुनाहों से बचते रहे, रब्बे करीम पूछता है, ऐ फरिश्तों इनको क्या दिया जाए, इनने अपनी मजदूरी पूरी कर ली है, इनको क्या दिया जाए। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला इनको आज मजदूरी दे दे, आज इनको मुआवजा दे दे, ये सारी सारी रमजान तेरी याद में रहे, ये सारे सारे दिन तेरे लिए रोजा रखते रहे। मौला आज जो है इनको दे दे, मुआवजा दे दे, मजदूरी दे दे। रब्बे करीम फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज मैंने इनको मजदूरी के सिले में जो है ये बख्शिश की खैरात अता फरमा दी है, मैंने सबको बख्श दिया है, मैंने सबकी नजात कर दी, मैंने जो है सबको जन्नत में अजीम ठिकाना दे दिया। अजीज़ाने गिरामी अल्लाहु अकबर, ये माह रमजान तो आता रहेगा। किसी ने क्या खूब कहा, जब गुजर जाएंगे माह 11 तेरी आमद का फिर शोर होगा, क्या मेरी जिंदगी का भरोसा। अजीज़ाने गिरामी हमें नहीं पता पिछले साल भी कितने लोग नए कपड़े पहनकर यहाँ बैठे थे, खुशबू लगा करके आए थे, बेहतरीन लिबास पहनकर आए थे, सज धज के आए थे। लेकिन आज जो है वो हम में नहीं है, आज वो अंधेरी कब्र के अंदर है, आज वो मिट्टी के अंदर वो डूबे हुए हैं। हमारी भी मौत आएगी और हमारा जो है वो सिलसिला दुनिया से मुनक़ते करके जाएगी। माह रमजान भी आता रहेगा लेकिन हम न होंगे। फरमाया कि जब गुजर जाएंगे माह 11 तेरी आमद का फिर शोर होगा, क्या मेरी जिंदगी का भरोसा। हमारी जिंदगी का भरोसा नहीं है, हमारी जिंदगी का कोई एतबार नहीं है, हम होंगे ना होंगे किसी को पता नहीं है। हर हर घंटे हर हर लम्हे जनाजे उठ रहे हैं, हमारा भी जनाजा उठेगा। कल मस्जिद में ये भी ऐलान हो गया, फला दुनिया से चला गया, फला दुनिया से चला गया, हमारा भी ऐलान होगा। याद रखिए अज़ीज़ाने गिरामी, माह रमजान तो रुखसत हो गया लेकिन अब भी जिंदगी के जो लम्हात है वो अल्लाह तबारक व तआला की याद में हम सबको गुजारने चाहिए, ताकि जो हमारी बकिया जिंदगी है अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से जो है उसे रहमत वाला बना दे, उसे बरकत वाला बना दे। अब आइए, ये आप देखते हैं जैसे ही माह रमजान जाता है, ईद का दिन आता है, लोग जो है गलियों में डेग बजाते हैं, जोर जोर से गाने बजाते हैं, गाड़ियों के अंदर गाने बजाते हुए घूमते हैं, हर तरफ म्यूजिक जो है वो नजर आता है, बेपर्दा औरतें नजर आती है, हर तरफ जो है फहाशी नजर आती है, लोग गलियों में शराबें पीते हैं, लोग जो है जिना की तरफ जाते हैं, सिनेमा घर जाकर लोग फिल्म देखते हैं। आखिर क्या वजह है? तो इस पर अज़ीज़ाने गिरामी मुकाशिफतुल कुलूब से एक रिवायत अर्ज करता हूँ। हज़रत सैयदना वहब बिन मुनब्बिह रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं कि जब भी ईद आती है शैतान चिल्ला चिल्ला कर रोता है, खूब जोर जोर से रोता है, खूब चीखें मारता है। इसकी बदहवासी देखकर तमाम शयातीन उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, ऐ मरदूद आज़म क्या बात है, आज इतना गुस्से में क्यों है, आज इतना
इब्लीस कहता है आए अफसोस कि आज अल्लाह ताला ने सारी उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश और मग़फ़िरत करवा दी, सबकी बख्शिश कर दी। अब क्या कहता है सुनिए, कहता है मेरे चेलों अब गलियों में चले जाओ, अब शहरों में चले जाओ, अब गांव-गांव चले जाओ, हर नगर चले जाओ और जाकर इन तमाम मुसलमानों को नफसानी ख्वाहिशात और लज्जत में मशगूल कर दो। यही वजह है आप देखिए कि जितना जो है कई महीनों में गुनाह नहीं होता, एक साल में गुनाह नहीं होता, वो ईद के दिन गुनाह होता है। आप देखिए पूरा साल इतनी बेहयाई नहीं होती जो ईद के दिन होती है, पूरा साल इतने गाने नहीं बजाए जाते जो ईद के दिन बजाए जाते हैं, पूरा साल जो है इतनी शराब नहीं पी जाती जो ईद के दिन शराब पी जाती है। आखिर क्या वजह है? ये वजह यह है कि जब मुसलमानों को बख्शिश का परवाना मिलता है तो शैतान जो है चिल्ला उठता है और अपने चेलों से कहता हो निकल जाओ, जाओ नफसानी ख्वाहिशात में लगा दो, दुनिया की लज्जतों में लगा दो, दुनिया की चाहतों में लगा दो। और अजीज़ाने गिरामी जब इब्लीस ये कहता है उसके चेहरे निकल पड़ते हैं और किस तरह जो है आप देखिए अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। माह रमज़ान कितना नूरानी महीना था, हवा भी मुबारक थी, उसकी फजा भी मुबारक थी, अफ्तार की क्या रौनकें होती थी, क्या सहरी की रौनकें होती थी। अब तो सब सूना सूना हो गया। आप आज जो है सिर्फ ज़ोहर की नमाज में मस्जिदों का चक्कर लगाइएगा, आपको पता चल जाएगा मस्जिद खून के आंसू रो रही होगी। ये नमाजी कहाँ चले गए? वो कहाँ गए जो अजान सुनते ही मस्जिद के अंदर आ जाते थे? वो कहाँ गए जो अजान से पहले मस्जिद में पहुंचते थे? वो कहाँ गए जो फजर की आवाज सुनकर मस्जिदों की तरफ दौड़ते थे? वो नौजवान कहाँ है जो फजर में दौड़ते दौड़ते जो है मस्जिद की पहली सफ में आते थे? अब वो नजर नहीं आएंगे। क्या वजह हो गई? क्या दीन बदल गया? क्या मजहब बदल गया? नहीं नहीं, दीन भी वही है, मजहब भी वही है, हर चीज वही है, लेकिन जो है इंसान जो है नफसानी ख्वाहिशात और लज्जत में ऐसा पड़ गया कि वो नींद के अंदर ऐसा मस्त होता है कि उसकी फजर की जमात भी चली जाती है, उसकी ज़ोहर की नमाज भी चली जाती है, कारोबार में असर मगरिब चली जाती है, थका होता है, ईशा चली जाती है। ये माह रमज़ान जो है अजीज़ाने गिरामी क्या आया था कि लोगों के अंदर इबादत का जज्बा बढ़ गया, लोगों के अंदर जो है नमाजों की चाहत बढ़ गई, लोगों के अंदर तिलावत कुरान पाक की मोहब्बत बढ़ गई, लोगों के अंदर जो है जिक्र और दुरूद पढ़ने का जज्बा बढ़ गया। लेकिन आप देखिए सिर्फ और सिर्फ एक दिन आप देख लीजिएगा कि कितना सन्नाटा, कितना जो है हम दूर मस्जिद से हो गए। तो मेरे कहने का मकसद ये है अजीज़ाने गिरामी, हम जो है अल्लाह की तरफ आए, मस्जिद की तरफ आए, नबी पाक अलैहिस्सलाम से जो हमारी निस्बत है इसको और मजबूत करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर जब तक जिंदगी है, जब तक हमें मौत नहीं आएगी, पंजगाना नमाज व जमात हम पर लाजिम करार दी है। ये अल्लाह का हमारे यहाँ जिम्मा है, इसको हर वक्त जो है पूरा करना है। और आप देखिए आज जब हम मस्जिदों से दूर हो गए, इबादत से दूर हुए, आज आप देखिए आलम इस्लाम परेशान है। आप बताइए कभी ऐसा हुआ है कि ईद के दिन लॉकडाउन लगा हो? कभी ऐसा हुआ है माह रमजान में लॉकडाउन लगा हो? कभी नहीं हुआ। इसमें तो रौनकें बढ़ जाती थी। ये सब हमारे गुनाहों की वजह से है जो हमने आज रब ताला को नाराज किया। आज अल्लाह ताला ने अपनी नाराजगी हमको दिखाई है कि ये देखो आज मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम जो है रोजा अफ्तार करने के लिए लॉकडाउन का सामना करोगे, तुम्हें अफ्तारी का सामान नहीं मिलेगा। आज मैं और आप गौर करें कि जब से हम गुनाहों की तरफ पड़े हैं, हर साल कोई न कोई मुसीबत आती है। कभी किसी साल रमजान में ज़लज़ला आता है, कभी किसी साल रमजान में बारिशें ज्यादा होती है, कभी किसी रमजान में तूफान आता है, कभी किसी रमजान में वबाई अमराज आते हैं। ये ऐसी ऐसी बीमारियां ये पहले तो न थी, अब कहां से आ गई? तो सिर्फ और सिर्फ ये अल्लाह की नाफरमानी का नतीजा है जो आज हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के दामन को छोड़ दिया। ये सब उसका वबाल है। मेरे भाइयों, आज सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर आपको ये पैगाम देता हूँ कि जिस तरह माह रमजान में आप मस्जिदों की तरफ दौड़ते थे, अपनी
याद रखिएगा, मोमिन के लिए हर लम्हा उसको अल्लाह के करीब करता है, उसको अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब अता करता है। अगर हम जो है नेकी की तरफ आए, हम अगर नमाजी बन गए, मस्जिद से रिश्ता जोड़ लिया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन को हमने मजबूती से पकड़ लिया, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी जो है हमारी रोशन होगी, कब्र भी हमारी रोशन होगी, आखिरत में भी जो है हमें इनाम मिलेगा। और याद रखिएगा, आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, मुबारक दिन है, लेकिन किसके लिए है? सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माह रमज़ान जाने के बाद जैसे ही ईद का दिन आया, अपने काशाने खिलाफत के अंदर ज़ारो कतार रो रहे हैं। लोगों ने कहा, या अमीर अल-मोमिनीन, क्या वजह है? आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, मसरत का दिन है, फरहत का दिन है, आप काशाने खिलाफत के अंदर आंसू क्यों बहा रहे हैं? आप क्या कहने लगे? आज हमारे लिए उनका ये जवाब गिरा में बांधने के लायक है। आपने फरमाया, अरे आज मुबारक दिन उसके लिए है, आज खुशी का दिन उसके लिए है जिसने माह रमज़ान को राजी किया है, जिसने माह रमज़ान में रोजे रखे हैं, जिसने माह रमज़ान में तरावियां पढ़ी है, जिसने माह रमज़ान में अल्लाह की रिज़ा को पाया। तो जिसने माह रमज़ान में अल्लाह की रिज़ा को पाया, उसके लिए आज ईद का दिन है। और जिसने अल्लाह को नाराज किया, जिसने नमाज़ों को पामाल किया, जिसने गुनाह भरी जिंदगी माह रमज़ान में भी जारी रखी, उसके लिए आज ईद का दिन नहीं है, उसके लिए वईद का दिन है, आज उसके लिए शर्मिंदगी का दिन है, आज उसके लिए नदामत का दिन है। ईद तो उसके लिए है कि जिसने रब को राजी किया हो, जिसने मौला की रिज़ा को पा लिया हो। आज हमारे मुर्शिद हजरत पीराने पीर हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर, उनसे पूछे, हुजूर आपके लिए ईद का दिन कौन सा है? आपके लिए खुशी का दिन कौन सा होगा? आपके लिए मसरत का दिन कौन सा होगा? आप फरमाते हैं कि जिस दिन मैं अपना ईमान सलामत लेकर कब्र में चला गया, वो दिन मेरे लिए ईद का दिन होगा। हजरत अली से पूछिए, ऐ मौलाए कायनात, आपकी तो शान बुलंद है, आप तो दामन रसूल है, आप तो खैबर के फाते हैं, आप तो शेर खुदा है, आप तो हैदर कर्रार है, आप भी बता दीजिए आपके लिए ईद का दिन कौन सा होता है? तो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे लिए ईद का दिन वो होता है जिस दिन में सबसे ज्यादा नेकियां करता हूँ, जिस दिन में सबसे ज्यादा अल्लाह की इबादत करता हूँ, जिस दिन में अपने रब को राजी करता हूँ, वो दिन मेरे लिए ईद होता है, वो दिन मेरे लिए मसरत का दिन होता है, वो दिन मेरे लिए खुशी का दिन होता है। लेकिन आज हम और आप जरा गौर करें, क्या हमने माह रमज़ान को राजी किया? क्या हमने माह रमज़ान में अल्लाह की रिज़ा वाले काम की है? तो यही जवाब आएगा, यही सिफर में जवाब आएगा, हमने कोई इबादत नहीं की, हम कोई मजदूरी के लायक नहीं है। लेकिन अजीज़ाने गिरामी, आज ये वक्त, आज का ये दिन, आज का ये मुबारक घड़ियां, ये हमें सदाएं देती है कि अब भी आ जाओ, मौला की तरफ आ जाओ। मौला के दरबार के सिवा कोई दरबार नहीं है, मौला की घर के सिवा कोई घर नहीं है, मौला के सहारे के सिवा तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, मौला के दोस्त से बढ़कर, उससे बढ़कर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। मौला के दिल में अल्लाह अकबर, मौला की रिज़ा के लिए तुम जो है अपना सब कुछ कुर्बान कर दो, फिर तुम देखना कि अल्लाह की रहमत तुम्हारे पास दौड़ती हुई चली आएगी, अल्लाह की रहमत जो है तुम्हारे को अपने सीने से लगा लेगी। तो अज़ीज़ाने गिरामी, ये ईद का दिन, आज खुशी का दिन, मसरत का दिन हमें ये पैगाम देता है कि हम जो है वो गुनाहों से बचकर अपनी जिंदगी अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत में गुजारे। और दूसरी चीज, जो हमसे नाराज हैं, जो हमसे रूठे हुए हैं, आज इस मुबारक दिन इन सबको माफ कर दीजिए, आज सबको गले लगा लीजिए, आज दिल से सबको माफ करते, मोबाइल पर नहीं, खुद घर जाकर उनसे माफी मांगे। इंशाअल्लाह देखिएगा, माफ ना भी करे तो इंशाअल्लाह उससे पहले आप जन्नत में दाखिल हो। आज का ये दिन, खुशी का दिन, ये गमों को भुलाने के लिए, ये तमाम पुरानी बातों को भुलाने के लिए हमें ये दिन जो है ये याद दिलाता है कि आओ आज
گرامی یہ دن جو ہے عظمت اور برکت والا دن ہے، اس لیے اس دن کو جو ہے وہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ گزارے تو انشاءاللہ تعالی یہ دن ہمارے لیے اور زیادہ جو ہے وہ برکت کا جو ہے وہ باعث بنے گا۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ وقت ہمارا یہ مکمل ہو گیا، اسی لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ بس آخری میں یہ وظیفہ لے کر جائیے۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عید کی دن یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے پہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ پڑھے اور تمام مرحومین کو اِشارے ثواب کرے تو اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی قبور میں 1000 انوار کو داخل کرتا۔ اور جب یہ پڑھنے والا دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی قبر میں بھی 1000 انوار کو داخل فرمائے گا۔ رب کریم ہم سب کی اس دن بخشش فرمائے اور مرتے دم تک اپنے گھر سے رشتہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وعلینا الا البلاغ المبین۔ عید کا طریقہ، نماز عید کا طریقہ سماعت فرمائیں۔ نیت کریں گے 2 رکعت نماز عید واجب، کہ یہ مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر واجب نہیں۔ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے اب تو سب سے پہلے ہے وہ اس طرح کہ اس کے اندر دیگر نمازوں کے مقابلے میں 6 تکبیریں جو ہے یہ زائد ہوتی ہیں۔